in ठीक है. How do we differentiate cos square x? See, this differentiation is based on a No, rule sir, which is it called was as cos x square. cos x square, right? Yes, sir. So this kind of differentiation is based on a rule which is chain rule. And we haven't discussed that because it will not be very much used in 11th. Yes, it is used in good questions for good questions, but it is not always asked in class 11th, or the thing that we are going to discuss, it will not be very much used in that. So I didn't discuss, but because you are asking, I'll tell you how it is differentiated. Try to understand. I'm not going in the I'm not going in detailed discussion of that rule, which is called as chain rule, but I'll tell you how such quantities will be differentiated if y is equal to cos x square. See, beta, last day we understood that the differentiation of cos is minus sign. Am I right? Yes, sir. तो देखो, cos के साथ कुछ भी हो, cos के साथ इनफैक्ट मैं कहता हूं आम प्लस इमली, कुछ भी हो, वो उसका एंगल है. तो Yes, अगर sir. इसका डिफरेंशिएशन मुझसे कोई भी कहेगा तो मैं आंख बंद करके पहले तो साइन लिख दूंगा, साइन आम प्लस इमली. ठीक है, समझती है ना आप आम और इमली? सर माइनस साइन होगा ना? हाँ, मतलब माइनस साइन. ठीक है, आम इमली समझती है ना आप? Yes, sir. Any angle. Any angle, right? अब this angle can itself be a variable or it can be a constant one. For example, अगर मैं आपसे कहूं cos of 30 degree means I have mentioned this angle as 30 degree and this is a fixed angle, right? Yes, sir. ये एंगल फिक्स कर दिया ना मैंने कि it is 30 degree, so you're not going to change. So this value is fixed. But if I say cos of x square, so this x is not fixed. It can be anything. It can be 10 degree, 20 degree, 30 degree. It is a variable quantity, right? If I put x as 10, so it will become cos 10 square. Sahi? So because Yes, if this angle is itself variable, what will I have to do? We'll have to differentiate this angle part also. ठीक है, हाउ वी विल डू दैट? तो देखो, पहले तो आप इसको ऐसे लिख दो, माइनस ऑफ साइन एक्स स्क्वायर. ठीक है, okay. then write d upon dx without putting any plus sign or minus sign in between, just in product, just write it as d upon dx of x square. Why? Because this angle is also a variable because it is x, so this x can have any value. But sir हमने ऐसा sin x के मतलब cos x के केस में तो नहीं किया था. हाँ, मैं अभी आता हूँ, उस बात पे आऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट. ये यहाँ अभी क्लियर हो गया? पहले ये बात समझ में आई हो तो बताओ. Yes, sir. कॉस का माइनस साइन उस एंगल के साथ लिख दो, एंड इन आगे आप क्या करो, इसको चेन कहते हैं कि भाई चेन चली. ठीक है, आगे क्या करो, प्रोडक्ट में आप उस टर्म को यूज करो जो वेरिएबल है, उस कॉस के अंदर भी जो वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन करो. तो ये हो जाएगा सर माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, so your final answer is minus of 2x sin x square. Now your doubt is very obvious, sir, why didn't we do this in this case when it was cos x, because x was also variable in that case also. तो मैं कहता हूं चलो कर लेते हैं. तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin x, राइट अंशिका? अब हम कहेंगे कि Okay, भाई d by that will come out to be 1. that is why we didn't do that in the previous cases, but in such these kind of cases we'll have to differentiate this variable also. Okay, then ठीक sir है, in examination do we have to mention this? you don't need to mention these things. You agar if they give you some function to differentiate, and if function is like this, cos of x square or cos of 2x or cos ax plus b of this form, where the angle is itself a variable and whose differentiation is not 1, then you will have to do this part. Okay. ठीक है, and if the angle is itself a variable but the differentiation of that is going to be 1, then you don't need to do that, you don't need to show that part. Okay, and ठीक है, sir what if it was y is equal to cos square x? cos square x, very good. फिर से खेल लेते हैं. Cos square x, how can you write this cos square x? So can we write this as cos x the whole square? Yes, sir. ठीक, dy by dx, treat this term as this term cos x whole square as one function or one term only. ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर ये x स्क्वायर होता तो इसका डिफरेंशिएशन हम क्या लिखते हैं, 2x to the power 2 minus 1.
दिस इज Yes, व्हाट sir. वी हैव रिटन, राइट? तो इसको अगर थोड़ी देर के लिए आप सिंपली इसी तरह से सोचो कि पावर इसका n है, तो दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू व्हाट, cos ऑफ x टू द पावर 2 - 1। टेल मी यस और नो। Yes, पहले sir. ये बात समझ में आई? नाउ अब ये तो आपने पावर के टर्म्स में, बट cos का डिफरेंशिएशन हुआ क्या? इसके No. अंदर जो क्वांटिटी है वो तो डिफरेंशिएट नहीं हुई। फिर से चेन रूल, आप आगे लिख दीजिए d/dx ऑफ cos x। नहीं समझे? Yes, sir. But sir, हम चेन रूल हम्म, किस केस में अप्लाई करते हैं? Is there any specific condition? यस देयर इज अ स्पेसिफिक कंडीशन कि आपका अगर जो भी टर्म इन्वॉल्व है, एंड इफ ईच टर्म इन्वॉल्व इज इटसेल्फ अ वेरिएबल, तो हमें उस हर टर्म को डिफरेंशिएट करना होगा। जैसे मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूं। मैं तुमसे कहूं कि भाई cos y इज इक्वल टू cos ऑफ log ऑफ x, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है? तो cos का एंगल तो log x कहलाएगा, बट log x इज इटसेल्फ अ वेरिएबल, ठीक है? Okay. तो Yes, by sir. just writing dy by dx as minus of sine of log x, it doesn't mean that you have differentiated this part. This variable part is not yet differentiated. So what you will have to do, you will have to apply the chain rule, okay? And you will have to continue the chain till each and every term involved is differentiated. Okay. ठीक है? जैसे मैं एक बार और बताता हूं आपको कि मैं आपसे कहता कि y is equal to cos of 4x square, तो क्या करें? dy by dx लिखें। dy by dx is minus of sine 4x square। Yes, sir. ठीक, क्या ये पूरा डिफरेंशिएट हो गया? जो जो सारे वेरिएबल्स डिफरेंशिएट हो गए? इज एवरी वेरिएबल डिफरेंशिएटेड? No, x square is left. x square is left. What we will do now, so we will not only x square but we will write 4x square, although 4 is a constant, but ये पूरा टर्म लेंगे ना आप, ये बेटा, Okay. ठीक है? तो माइनस ऑफ साइन 4x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे 4 एज इट इज, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x, so this will become minus of 8x sine of 4x square. Did you understand? Sir, why have we taken 4 here? Because 4 is a constant, na? Although it is a constant, but this whole part has to be differentiated because this is coming under the angle of sine. Okay. ये साइन का पूरा Okay, एंगल है ना, तो okay. इस पूरे Yeah. एंगल को यू आर डिफरेंशिएटिंग नाउ, राइट? तो उसमें अगर कोई कांस्टेंट है तब भी यू विल हैव टू टेक दैट कांस्टेंट आल्सो व्हाइल डिफरेंशिएटिंग द एंगल पार्ट। Okay, sir. ठीक है, आगे बढ़ूं? चलिए आगे बढ़े। तो आई थिंक you more or less you now know how to differentiate a quantity. Now we move to the next part of this calculus which will be used, and that part is integration. ठीक है? नाम सुना है कभी? Yes, sir. चलो मैं इंटीग्रेशन को पहले तो आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि व्हाई डू वी इंटीग्रेट, ठीक है? उसका एक मैथमेटिकल रीजन दे देता हूं, फिर उसके बाद एक लेमन लैंग्वेज वाली डेफिनेशन दे दूंगा, फिर उसके बाद आई विल टीच यू हाउ टू इंटीग्रेट। बट बिफोर दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो बेटा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आई हैव दिस लाइन और दिस कर्व, और मैं आपसे कहूं कि मुझे इस ब्लैक वाली लाइन के अंडर में मुझे एरिया बताओ, व्हाट इज द एरिया बिटवीन दिस x1 टू x2, व्हाट इज दिस एरिया? तो आप क्या करोगे? आप सिंपली यू नो द फॉर्मूला फॉर द एरिया, बिकॉज ये आपको एक जो ये ज्योमेट्रिकल फिगर नजर आ रहा है, that is basically a rectangle, and you will just apply the formula for the rectangle to get the area, right? Yes, अगर sir. ये स्क्वायर बनता तो स्क्वायर का आप एरिया का फॉर्मूला लगा लेते, बहुत बढ़िया सा। बट अगर मान लीजिए कि मैं आपसे ये कहूं कि आई हैव अ कर्व व्हिच इज ड्रॉन बिटवीन y एंड x, बट द कर्व इज लाइक दिस। अब मुझे बोला गया कि भाई इस कर्व के अंडर में मुझे एरिया बताओ, इस कर्व के अंडर में मुझे एरिया बताओ। अब कैसे करोगे? अब आप ये देखो, अगर तो ना तो ये रेक्टेंगल है, ना सेमी सर्कल है, ना सर्कल है, कुछ भी नहीं है ये। मतलब ये ऐसा कोई फिगर नहीं है जिसकी एरिया का फॉर्मूला आपको पता हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ध्यान से देखें तो हर पॉइंट पे x इज ऑल्सो चेंजिंग एंड y इज ऑल्सो चेंजिंग, राइट है बेटा? नहीं, ये बात समझ में। देखो, तुम्हारे पास जो जनरल जो फिगर्स होते हैं उसमें x और y की वैल्यू फिक्स होती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इफ इट इज अ रेक्टेंगल तो दिस लेंथ इज फिक्स्ड एंड दिस लेंथ इज फिक्स्ड। टेल मी यस और नो? Yes.
Am I audible? Yes sir. ठीक है, मेरी आवाज जा रही है ना, कोई इशू तो नहीं है? No sir. तो ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर ये कोई रेक्टेंगल होता तो मुझे मालूम है कि ये फिक्स लेंथ है, ये फिक्स लेंथ है, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। बट ये कर्व अगर आप देखो तो इस कर्व में यहाँ पर x की वैल्यू बेटे अलग है। यहाँ पर जैसे हम पहुंचेंगे x चेंज्ड, y also changed, यहाँ पर x changed, y also changed, in fact at Okay. every Yes sir. point x and y is changing, right? And this value is not fixed कि आप सिंपली कहो कि नहीं हम मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल लेंगे, you cannot do that because neither length nor breadth, मतलब breadth कह दूं अगर एक तरीके से तो, या इसको अच्छे टर्म में मैं ये कह सकता हूं कि neither x nor y is fixed or constant, both is variable। नॉर्मल मेथड से तो एरिया नहीं निकाल सकते। क्लियर है? तो अब न्यूटन के सामने भी यही प्रॉब्लम थी। एक्चुअली में जो पूरा कैलकुलेशन है, जो मैथमेटिकल पोर्शन हम पढ़ रहे हैं और जो पढ़ेंगे आप मैथ्स में, ये पूरी की पूरी चीज न्यूटन ने मतलब दी हुई है आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आप न्यूटन को, यू कैन कर्स न्यूटन फॉर दिस एनीवेज। तो अब देखिए इसमें एरिया कैसे निकाला जाए। तो पॉइंट ये है कि इसमें एरिया निकालने का तरीका क्या होगा। तो इसमें एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमने एक तरीका सोचा कि बेटे अगर मैं इसका बहुत छोटा सा लेंथ ले लूं, बहुत छोटा सा, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? बहुत छोटा, कितना छोटा सर? कल बताया था, इनफिनिटेसिमली स्मॉल वैल्यू। कितना छोटा? Infinitesimally small. मतलब इतना छोटा कि इसको हम ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मतलब जितना छोटा वो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है ना, आप इन एक्चुअल आप ऐसा समझो कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इससे भी बहुत छोटा है, तभी तो ये कंपेरेबल टू जीरो होगा। ठीक है, तो बहुत छोटा है। और एक बात सोचो कि अगर कोई सर्कल, मान लो मैं कहता हूं कोई सर्कल या कोई कर्व मैं आपको दे दूं, तो एक बात आपको पता होगी शायद कि इसका अगर बहुत छोटा सा पोर्शन लिया जाए तो आई कैन ट्रीट बहुत छोटा सा पोर्शन एज अ स्ट्रेट लाइन। एम आई राइट? Yes sir. थिंक अबाउट इट। ठीक है, तो अगर मैंने ऐसा बहुत छोटा सा पोर्शन ले लिया और मैं इसको एक स्ट्रिप बना दूं, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जैसा कुछ दिखेगा। देखो, अगर एक बहुत छोटा सा पोर्शन लेके एक रेक्टेंगल तो बना ही सकता हूं। मान लो यहाँ पर y की वैल्यू कुछ है और ये जो है ये थिकनेस बहुत छोटी सी थिकनेस है, तो ये dx है। करेक्ट है बेटा? समझो पहले, अगर आपको समझ में आए तो मैं आगे बढ़ूंगा। Yes sir. तो इस स्ट्रिप को देखें तो इट कैन बी ट्रीटेड एज अ रेक्टेंगल। तो इस स्ट्रिप की एरिया को हम लिख सकते हैं y dx, which can be written as equal to dA। मतलब बहुत छोटा सा एरिया ऑफ दिस बहुत पतली सी स्ट्रिप इज y dx। क्लियर है? अब एक बात सोचिए आप। So why this dA? Because area is very small. Yes, of course, because Okay. dx is very small, so this strip is very thin, and because this strip is very thin, so obviously this area will also be very small, right beta? Yes sir. ठीक है, that is why we are writing dA। अब ऐसा सोचो आप लॉजिकली कि यहां से हम ऐसा ऐसा स्ट्रिप कंसीडर करें और यहाँ पे लास्ट एक स्ट्रिप कंसीडर ले, तो ये सारे ऐसे ऐसे स्ट्रिप्स का एरिया हम फाइंड करते हैं और ऐड करते जाए, तो क्या टोटल एरिया मिल जाएगी या नहीं? थिंक अबाउट इट, लॉजिक समझो पहले। भाई यहां से ऐसे ऐसे स्ट्रिप्स कंसीडर करते जाएं, ऐसी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप टिल द एंड, और सारे की एरिया को ऐड कर दें, तो विल आई गेट द टोटल एरिया और नॉट? Yes sir. थोड़ी देर के लिए आपको स्क्रीन दिखना बंद होगी, 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, चलिए d इज इक्वल टू y dx। तो बेटा बस एक बात बताओ, क्या नाम है आपका? अंशिका। मुझे एक बात बताओ, सुन रहे हो? Yes sir. मुझे एक बात बताओ, ऐसी ऐसी स्ट्रिप मतलब एक दो होगी या बहुत सारी स्ट्रिप्स हो सकती हैं ऐसी? सर अगर हम consecutive strips लें तो? नहीं, मतलब अगर इफ आई स्टार्ट टेकिंग स्ट्रिप्स, तो इन गोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, हाउ मेनी स्ट्रिप्स कैन बी देयर? Sir infinite. इनफाइनाइट, बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिप्स वुड बी देयर, राइट? Yes और sir. अगर आप नेट एरिया निकालना चाहते हो तो सबको ऐड करना इट इज नॉट एन इजी टास्क। मतलब आप सोचो n नंबर, n is tending to infinity, such a large number, तो you cannot add the numbers till infinity, right? By Yes normal sir. method, वो तो पूरी रात मतलब पूरे जिंदगी लग जाएगी, but you will not be able to add।
तो इसलिए न्यूटन ने बोला कि साहब एक काम करते हैं, हम एक मैथमेटिक्स बना देते हैं कि ऐसे केसेस में हम ऐड करने का एक तरीका ही बना देते हैं, ठीक है, और उसी तरीके को इंटीग्रेशन का नाम दिया जाता है। उसने बोला कि भाई ऐसा करते हैं कि इसको हम ऐसा सांप, मतलब स्नेक लाइक स्ट्रक्चर, दिस साइन इज रिप्रेजेंट इंटीग्रेशन, ये ऐसा साइन लग जाए मतलब इंटीग्रेशन, राइट, ठीक है, इसको ऐसा इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब ऐसी वेरिएबल क्वांटिटी को ऐड करने का एक तरीका बना दिया उसने, और उसका नाम रख दिया इंटीग्रेशन। क्या नाम रख दिया? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये पूरी कहानी सुनाने का मतलब क्या है, मतलब सबसे पहली बात ऐसा समझो कि इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द एरिया अंडर अ कर्व। मतलब इंटीग्रेशन कैसा प्रोसेस है, तो एरिया फाइंड करने का प्रोसेस है, और किसके किसके अंदर में एरिया फाइंड करता है, तो अंडर एनी गिवन कर्व, मतलब वो मेथड जिससे आप एरिया अंडर अ कर्व फाइंड कर सकते हो, दैट इज बेसिकली द इंटीग्रेशन। क्लियर है? यस सर। अब इसी को दूसरे लैंग्वेज में और समझो, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन में आप ब्रेक करते हो, मैंने आपको कल एक बात समझाया था अगर आपको याद हो, कि इन द केस ऑफ डिफरेंशिएशन आप ब्रेक करते हो, है ना, मतलब एक लाइन दिया, मैंने बोला था कि अगर एक लाइन है तो यू ब्रेक द लाइन इनटू स्मॉल पॉइंट्स इन द केस ऑफ डिफरेंशिएशन, एम आई राइट? कल मैंने बोला था ये। यस सर। और इंटीग्रेशन में आप क्या करते हो, तो इंटीग्रेशन में यू बेसिकली कंबाइन द पॉइंट्स टू फॉर्म अ लाइन। यस ठीक है, सर। तो मतलब इट्स अ रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, तो एक बात याद रखो, इन अ लेमैन लैंग्वेज आई कैन सिंपली से दैट इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेरिएबल क्वांटिटीज। मतलब अगर क्वांटिटी वेरी कर रही हो और ऐसी वेरिएबल क्वांटिटी को एक रेंज में, मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट से लेके एक पर्टिकुलर लिमिट तक ऐड करना है, तो उस केस में वी यूज इंटीग्रेशन। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक, तो अब इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, तो इंटीग्रेशन बस छोटा सा एक दो फॉर्मूला याद रखना है, वैसे इंटीग्रेशन इज अ वेरी वास्ट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, और ये अपने आप में ये इट्स ऑफ 14 मार्क्स, ठीक है, इन क्लास ओके। 12th। ये सिर्फ इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ 14 मार्क्स का है, 14 इन 16 मैथ्स मार्क्स का, और तो फिजिक्स सर? जी, सर इन मैथ्स फॉर फिजिक्स? नहीं नहीं, इन मैथ्स इन क्लास 12th। ओके। ठीक है, तो सोच लो ये कितना वास्ट पार्ट है, बट अभी हम आते हैं इस बात पे कि हमें इससे मतलब नहीं है भाई, हमें तो एक दो फॉर्मूले से मतलब है, एक दो तीन फॉर्मूले इस तरह के जिससे हम चीजों को समझ सके, हमें फिजिक्स आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, जब भी ये स्ट्रक्चर लगा होगा, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन, ओके। ये डीएक्स। ठीक है, अब अगर मैं डीएक्स का इंटीग्रेशन करूं, तो सोचो बेटा, डीएक्स का मतलब एक्स का कैसी वैल्यू, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू ऑफ बहुत एक्स, छोटी। बहुत छोटी, तो ऐसी बहुत छोटी 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 वैल्यूज को ऐड कर दे तो क्या मिलेगा मुझे, सर एक बड़ी अगर वैल्यू। एक बड़ी वैल्यू, उसी की क्वांटिटी की बड़ी वैल्यू, तो मतलब एक्स, तो पहला फॉर्मूला हो गया। समझे? नहीं सर, ये वाला समझ नहीं आया। नहीं आया? फिर से अभी खुद बताया आपने। भाई मैं कहूं कि ये आम मैंगो का, कहोगे सर खाली मैंगो मैंगो बोलते रहते हैं, एनीवेज, मैंगो का ये एक बहुत छोटा सा टुकड़ा है, इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट ऑफ मैंगो। अगर ऐसे ऐसे मैंगो के मैं छोटे 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 एलिमेंट को ऐड करता जाऊं, तो व्हाट वुड आई गेट? ओके, द एंटायर मैंगो। ओके। द एंटायर मैंगो, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग यस हियर। सर। इसके dx तो x, ठीक है, तो इसी तरह से अगर dt लिखा हो तो t, इसी तरह से dv लिखा हो तो v, है ना, तो मतलब अगर हम इस इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू को कंबाइन करते जाएं, तो आई विल गेट द एंटायर वैल्यू, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर। फॉर्मूला नंबर 2, कि अगर मान लीजिए कि ऐसा लिखा हो x and dx, इसका मतलब कि सिर्फ dx ऐड नहीं हो रहा, कोई वेरिएबल चीज है जिसको हमें ऐड करना है, मतलब जैसे बेटा समझना थोड़ा सा लॉजिक, कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स स्क्वायर है, एक्स हेलो। हेलो।
Anshika, are you there? Can you hear me? Yes, sir. Now you're audible. Actually, your voice was not audible. Yes. That was because of internet connection, I guess. Okay, now it will not. It will not repeat now. Anyways, तो मैंने आपसे ये बोला कि dx का इंटीग्रेशन x होगा. दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला. तो dt का इंटीग्रेशन t, ये मैंने लिखा था अभी, dt का t, dv का v, इस तरह से. ये तो सिर्फ dx अगर है तो दिस इज द इंटीग्रेशन. अब अगर सर दूसरा ऐसा हो कि x स्क्वायर dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, एक्स स्क्वायर dx, या इस तरह की वैल्यू सच दैट कि उसमें एक और टर्म बढ़ा दिया मैंने, एक और वेरिएबल बढ़ा दिया और उसको इंटीग्रेट करना है. तो कैसे करेंगे सर? जैसे मान लो मैं आपसे कहूं, इस बात को समझना, मान लो मैं आपसे कहूं कि एरिया इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, मान लो. तो आप एक बात सोचो कि अगर एरिया 4x स्क्वायर है और मुझे कहा जा रहा है कि भाई इसको ऐड करना है, ऐसे ऐसे 4x स्क्वायर की वैल्यूज को ऐड करना है, तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना. यस सर. तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये 0 हो गया, x की वैल्यू 0.0001 रखूंगा तो ये 4.0000 हो जाएगा. ठीक है. तो इसी तरह से बहुत सारी वैल्यूज को अगर मुझे ऐड करना है, इस तरह की बहुत सारी वैल्यूज को, ठीक है, जिसमें x भी इन्वॉल्व हो गया और उसका कुछ पावर है, तो इस तरह का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इंटीग्रेशन. क्या मतलब हुआ सर? एक मीन एग्जांपल. सर, अगर बहुत सारे x के छोटे छोटे पार्ट्स ऐड हो रहे हैं, देन उनमें एक कांस्टेंट टर्म भी मल्टीप्लाई हो रही है. नहीं, कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, ये तो है तो वेरिएबल ही. कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. अगर कांस्टेंट होगा तो उसको कुछ नहीं करना होता, वो अभी हम आएंगे तीसरे फॉर्मूले पे. जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं. मान लो मुझे कहा गया कि एक क्वांटिटी है एक्स स्क्वायर, उसको इंटीग्रेट करना है. मतलब मुझे ये बोला गया कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यू हैव टू इंटीग्रेट दिस एक्स स्क्वायर. ओके. नहीं समझे? तो अगर मैं कहीं पर लिखा हुआ देखूं कि अगर मुझे एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, तो इसको अपन क्या लिखेंगे? x पे पावर 2+1 अपॉन 2+1, मतलब x³ 3. कहाँ इशू आया बोलो? सर, बोलो. इंटीग्रेशन का मतलब यही है ना कि हमने छोटी छोटी वैल्यूज को ऐड किया. वैल्यूज को ऐड करना है, छोटी छोटी वैल्यूज को ऐड करना है. तो वो छोटी छोटी वैल्यूज ऐड करने का मतलब कि वो सिर्फ dx के फॉर्म में छोटी वैल्यू हो, ये जरूरी नहीं है ना. अब जैसे मैं आपसे एक बात बताता हूँ, सुनिए. जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरी वेलोसिटी वेलोसिटी 2t² है. मान लो मैंने आपसे बोला मेरी वेलोसिटी कितनी है? 2t² विद t इज टाइम. ठीक है. और मैंने आपसे, इसका मतलब क्या, मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है बेटा? पहले ये बताओ. सर, वेरिएबल है. वेरिएबल है. तो मेरी वेलोसिटी की बहुत सारी वैल्यूज होंगी. यस सर. अब मैंने आपसे ये बोला कि टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड से स्टार्ट करो और टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स तक जितनी मेरी वैल्यू ऑफ वेलोसिटीज है उन सबको ऐड करो. ओके. तो क्या करेंगे हम? सोचो, अगर ऐसे करना हो तो पहली बार हम t को 0 रखेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 हो गई. फिर t को जस्ट 0 के बाद वाला नंबर कौन सा होगा? 1? नहीं. 0 के 0.1 बाद मतलब 0.000. 0, नॉट ओनली 0, बहुत 0.0001. अब उसको रखेंगे, फिर हम v की वैल्यू निकालेंगे, फिर t इक्वल टू 0.0002. मतलब सोचो ना, ऐसे बहुत, मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती यस सर. है ना. तो उन सब वैल्यूज को रखते रखते ऐड करेंगे हम, हमारी जीवन खत्म हो जाएगा, हम नहीं कर सकते. तो न्यूटन ने बोला कि अगर इस फॉर्म की वैल्यू है ना और तुम्हें कहा जा रहा है कि ऐसे को ऐड करके बताओ इन अ पर्टिकुलर रेंज, तो ये फॉर्मूला यूज कर लो. नहीं आया? Which one, sir? दिस वन, x टू द पावर n dx फॉर्म. बट सर, यहाँ पे हमने कहाँ लिमिट लगाई? नहीं, लिमिट अभी हम आएंगे लिमिट पे, डोंट वरी अबाउट दैट लिमिट. लिमिट तो मैं सिखाऊंगा. इस तरह के इंटीग्रेशन को इनडेफिनिट कहते हैं. अभी लिमिट नहीं है, लिमिट भी लगा के कैसे सॉल्व होगा वो भी सिखाऊंगा. पहले तुम्हें ये लॉजिक समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं? सर, ये ना लास्ट वाला लॉजिक समझ नहीं आया, जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ x² dx है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन ऐसे मत समझो कि छोटे छोटे पॉइंट. वो तो मैंने एक जनरल एक फॉर्म बताया ना, लेमन लैंग्वेज. इसका मतलब इंटीग्रेशन में मैंने एक साथ साथ लेकिन एक बात और बोला था कि इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग द वेरिएबल्स. ये बोला था ना. इफ अ Yes. क्वांटिटी इज वेरिंग, तो वेरिएबल क्वांटिटी को ऐड करने का जो तरीका है वो क्या है? इंटीग्रेशन. ये भी तो बोला था बेटा, याद है? भूल गई? ठीक है. No, sir. तो अगर Yes, मैं sir. आपको आपको मैं कोई वैल्यू दे दूं कि मैं कहूं आपसे कि x टू द पावर 3, इज इट अ कांस्टेंट और अ वेरिएबल? It is a variable, sir. तो अब इसको इंटीग्रेट करना है, मतलब इस तरह की क्वांटिटी को ऐड करना है. तो कैसे करेंगे? Hmm.
है ना, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। नहीं समझे? वेरिएबल क्वांटिटी तो किसी भी फॉर्म की हो सकती है ना छोटी। अरे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने लिखा कि मेरी वेलोसिटी इज इक्वल टू 2x² है, तो ये वेलोसिटी ओके, कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल। तो ऐसी वेरिएबल वेलोसिटी को मुझे ऐड करना है, कैसे करेंगे? आपने कहा ना वेलोसिटी वेरिएबल है, यस सर। तो इसको मुझे ऐड करना है, ऐसी वेरिएबल क्वांटिटीज को ऐड करना है, तो क्या करें? इसमें तो x की वैल्यू बहुत कुछ हो सकती है, कैसे ऐड यस किया सर। जाएगा? तो ये इंटीग्रेशन का प्रोसेस लगाएगा। मैं आपसे कह दूं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 4x³ है, तो ये भी वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल को कैसे ऐड करें? तो इंटीग्रेशन का ये प्रोसेस लगाएंगे। नहीं ओके। समझिए आप? मतलब वेरिएबल किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना, वेरिएबल किसी भी, मतलब जरूरी थोड़ी कि खाली dx ही हो। अगर सिर्फ dx है तो उसका इंटीग्रेशन तो सीधा x लिख दीजिए। बट अगर वेरिएबल क्वांटिटी x के इस फॉर्म में है तो फिर क्या करेंगे? नहीं समझे आप? नो सर। इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ व्हाट? कांस्टेंट क्वांटिटी या वेरिएबल क्वांटिटी? वेरिएबल क्वांटिटी। तो वेरिएबल का क्या मतलब होता है? वेरिएबल का क्या मतलब होता है? खाली dx का मतलब है कि इसी की वैल्यू, छोटी छोटी वैल्यू ऐड होगी। ये वेरिएबल का मतलब ये भी हो सकता है कि दिस x² इज आल्सो वेरिएबल और नॉट? टेल मी यस और नो। यस सर। x³ इज अ वेरिएबल और नॉट? यस। तो इस तरह की क्वांटिटी को कैसे ऐड करोगे? ओके तो उस तरह की सर। क्वांटिटी को ऐड करने के लिए इंटीग्रेशन ही यूज होगा। क्या यूज होगा? इंटीग्रेशन। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? यस सर। तो ये फॉर्मूला है। अब मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि मैंने आपसे कहा कि आपको ये फंक्शन दिया हुआ है x³ dx, इसको इंटीग्रेट करना। ओके तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे? सर, एक्स तो ये रेज़ टू पावर फॉर्मूला n लगाएंगे। माइनस 1। यस नहीं सर। नहीं, n-1 नहीं, ये ओ फॉर्मूला n n प्लस प्लस 1, 1 है। सॉरी। हाँ। तो 3+1 अपॉन 3+1, 3 प्लस मतलब 1। x टू द पावर 4/4। यस सर। ठीक है, देखो वेरिएबल किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना, वो सिर्फ dx होता तो x लिख दीजिएगा। बट अगर मान लो कि वेरिएबल x² है या वेरिएबल x³ है और उसको इंटीग्रेट करने को कहा जा रहा है, तब तो खाली x नहीं लिख सकते ना आप। ओके। ठीक है, तब यस तो सर। कुछ ना कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा ना टू इंटीग्रेट सच अ क्वांटिटी। हुँ। तो ओके। इसलिए ऐसा करेंगे। ठीक है, नोट कर लो। डन सर। डन। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर मैं आपसे कह दूं कि सर ये 1/x² dx है, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? एक्स की पावर -1/2, सॉरी -2 हो जाएगी एंड देन विल इंटीग्रेट इट। यस, वेरी गुड। विल इंटीग्रेट दिस बाय द फॉर्मूला x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो x-1 अपॉन -1। ओके। ठीक है, यस सर। ओके, थैंक यू। ओके, इसको फिर थैंक से यू सर। सोचना, अगर कोई इशू आए तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लेना। तो अभी यहीं ओके। तक, ठीक है, चलिए। एंड सर, अगर मुझे आपके मतलब अगर डाउट्स पूछना था सर, आप प्लीज़ अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर सकते हैं? ये तो मुझे पूछना पड़ेगा, बट आपको किसी का व्हाट्सएप नंबर होगा जिनसे आपकी बात हुई होगी। सर, मिस्टर निष्कर्ष से बात हाँ, हुई थी। मिस्टर निष्कर्ष को आप सेंड कर दें दीजिएगा, वो मुझे भेज देंगे। ओके, बट सर ये तो बहुत ठीक। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा ना? जैसे मतलब अगर मुझे आप एग्ज़ाम टाइम में कुछ इंस्टेंट पूछना है देन? अच्छा, तो एक काम करते हैं, उसका मैं बात कर लूंगा मैनेजमेंट से। ठीक है, तो अगर कोई एक वो ग्रुप बना सकें इस तरह की चीज, तो ओके उसमें सर। है ना, तो मैं थोड़ा सा, मुझे टाइम दीजिए, मैं बात कर लूंगा। ओके सर। ओके।